Hello dear student, how are you? I am Marvind Arya. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic in which we study different type of propagation of electromagnetic waves. Okay, so today's we discuss propagation of electromagnetic waves या methods of propagation of electromagnetic wave in communication system. क्या कहेंगे? मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके. क्या है? मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम. तो देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने टाइप से प्रोपोगेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं. सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फर्स्ट वन इज ग्राउंड वेव propagation, ठीक है. ग्राउंड वेव propagation फर्स्ट मेथड हो गया आपका. सेकंड मेथड है स्पेस वेव propagation, नेक्स्ट वन इज स्काई वेव propagation. So these are the 3 methods of propagation of electromagnetic waves. Whenever the electromagnetic wave will transmit from transmitting antenna to receiving antenna or transmitter to receiver, then these are the 3 basic methods to transfer electromagnetic wave: ground wave propagation, space wave propagation and sky wave propagation. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ग्राउंड वेव propagation. देखिए एक्चुअली व्हाट इज द ग्राउंड वेव propagation. सो फर्स्ट वन इज वी डिस्कस अबाउट ग्राउंड वेव propagation. Okay, ground wave propagation. Actually the method of propagation of electromagnetic waves from transmitting antenna to receiving antenna near to the surface of earth, okay, is called ground wave propagation. In this method actually the electromagnetic waves were transferred or transmit from transmitting antenna to receiving antenna near to surface of earth is called ground wave propagation. एक्चुअली क्या बताया? वेव बिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस फॉर्म में होगी? रेडियो वेव में. और रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ट्रांसमिट या प्रोपोगेट फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना नियर टू ग्राउंड, ठीक है, वेरी क्लोज टू अर्थ, ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर्ड, electromagnetic wave transferred from transmitting antenna to receiving antenna, from transmitting antenna to receiving antenna, transmitting antenna to receiving antenna, transmitting antenna to receiving antenna नियर ग्राउंड, ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना along the ground, क्या बताया आपको? द मोड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagation
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। एक्चुअली क्या होगा कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पे अलोंग द ग्राउंड जाएगा। सो इन दिस मेथड वी नो दैट कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ बिकम मोर एंड ड्यू टू द कंडक्टिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, electromagnetic waves when transferred near to the ground, so actually some part of energy of electromagnetic waves is absorbed by the earth, that's why the attenuation is produced in the signal। क्या होगा? attenuation होगा सिग्नल में, सिग्नल वीक होगा क्योंकि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी सिग्नल की। सो एक्चुअली ड्यू टू द absorbing behavior of earth can absorb the electromagnetic waves, so the strength of signal propagate through electromagnetic waves, strength of radio wave signal propagate through electromagnetic wave get decreases, that's why this type of wave propagation is suitable for small distances, okay, and the frequency is about 1.5 megahertz to 2 hertz, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बिलो 2 मेगाहर्ट्ज और 1.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, इन सम बुक्स इट इज टेकन 1.5 और आइदर 2 मेगाहर्ट्ज। तो आपको क्या बताया ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन क्या होगा? द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना along the ground. This type of wave propagation is called ground wave propagation. In ground wave propagation, electromagnetic wave will propagate from transmitting antenna to receiving antenna close to the surface of earth. That's why due to conductivity of earth, some energy of electromagnetic waves become absorbed by the ground. That's why the strength of signal in ground wave propagation decreases. Hence this type of propagation is suitable for small transmission, okay, small distances, and the frequency in this transmission is less than 2 megahertz. Next इसके बाद हम बात करते हैं space wave propagation की. Second one is what? Space wave propagation. Space wave propagation. Space wave propagation. सो देखिए इन मेथड ऑफ स्पेस वेव प्रोपोगेशन, एक्चुअली हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझते हैं, डायग्रामेटिकली। इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस, क्या है? स्पेस वेव प्रोपोगेशन। सेकेंड वन इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन में ये आपका मेथड है, ओके, सॉरी, दिस इज ए स्काई वेव प्रोपोगेशन। एक्चुअली हम स्पेस वेव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन हमारा क्या होगा? स्पेस वेव प्रोपोगेशन, दिस इज ए स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ओके, ये आपका एक स्पेस वेव प्रोपोगेशन का पार्ट है। एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम, या प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना थ्रू द ट्रोपोस्फीयर। किसके थ्रू होगा? ट्रोपोस्फीयर। जैसे आप देखेंगे डिफरेंट अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर, तो इसमें एक पार्ट होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। सो द प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। Transmitting antenna, the propagation of electromagnetic wave will takes place from transmitting antenna to receiving antenna through the troposphere is called space wave propagation. अब एक्चुअली इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन क्या होगा? ये आपको ये वाला जो मेथड है ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन है। सो एक्चुअली इन स्पेस वेव प्रोपोगेशन when transmission of signal will takes place through troposphere, so in tropospheres clouds are present, okay, क्या होगा? important property है, troposphere में क्या होंगे? clouds होंगे, ठीक है। so whenever the electromagnetic wave signal will move from surface of earth to the cloud,
देन स्मॉल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे विल टेक्स प्लेस, कुछ पार्ट इसका पेनिट्रेट भी कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकम स्मॉल रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द troposphere and they slightly bend towards the earth's surface and reaches to the receiving antenna from the transmitting antenna। फिर से बताएं, स्पेस वेव प्रोपोगेशन एक्चुअली है क्या? तो द मेथड ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल या ट्रांसमिशन ऑफ या प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपोगेशन। एक्चुअली इन ट्रोपोस्फीयर क्या होगा? एक्चुअली इन ट्रोपोस्फीयर क्लाउड्स आर प्रेजेंट, इसमें बादल होंगे, है ना, ट्रोपोस्फीयर होगा, डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होगा। सो क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, सो वेन एवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना देन दे गेट strike to the incident on the troposphere, surface of troposphere, and the refraction of light will takes place from the clouds or from the troposphere layer, then it get refracted back slightly towards the earth surface, so it received back by the receiving antenna. This mode of wave propagation is called space wave propagation, and in this method the frequency of wave is 100 to 200 मेगाहर्ट्ज। इसमें जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, द वेव फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड इज 100 to 200 मेगाहर्ट्ज, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट मेथड, LOS मेथड, लाइन ऑफ साइट मेथड। दिस मेथड ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मेथड। ओके, इसको हम लाइन ऑफ साइट मेथड कहते हैं, LOS मेथड कहते हैं, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बात समझ आ रही है? समझ पा रहे हैं आप? ये अर्थ सरफेस पे ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल जा रहा है, ट्रोपोस्फीयर से ये रिटर्न बैक आ गया और रिसीविंग एंटीना पर आ गया। तो ये एक मेथड होता है लाइन ऑफ साइट मेथड, इसलिए कहते हैं, बट एक्चुअली इसमें क्या होता है, नियर टू स्ट्रेट जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का, नियरली इन ए स्ट्रेट लाइन, क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट मेथड। स्पेस वेव के बाद नेक्स्ट है स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन की। स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन। सो व्हाट इज द स्काई वेव प्रोपोगेशन? सो द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना बाय द TIR ऑफ आइनोस्फीयर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ आइनोस्फीयर। देखिए ये क्या होगा, ये है हमारा कौन सा, स्काई वेव प्रोपोगेशन, ठीक है, स्काई वेव प्रोपोगेशन। सो हम एक्चुअली स्काई वेव प्रोपोगेशन को समझते हैं, क्या होता है एक्चुअली स्काई वेव प्रोपोगेशन। आपको क्या बताया कि द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम transmitting antenna to receiving antenna by the total internal reflection of ionosphere। okay, actually होगा क्या, it reaches from transmitting antenna to receiving antenna by the TIR of ionosphere या total internal reflection of ionosphere। क्या प्रोसेस होगी इसमें? तो अगर हम इसमें प्रोसेस की बात करें, एक्चुअली हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो हमारा TIR है वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आप ऐसे पढ़े होंगे, ये आपकी एक सरफेस हो गई, ये इस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस सरफेस पे। ये सपोज दैट इधर एयर है और नीचे ये क्या है, वाटर है। ओके, द सरफेस इज बिटवीन एयर एंड वाटर। तो ये वाटर क्या हो गया, डेंसर हो जाएगा। पहले हम इसको लाइट के सेंस में समझते हैं, फिर इसके सेंस में समझेंगे। और ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से, उससे कोई लाइट रे पास होती है इस तरह से, तो इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन द ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ
ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीजेस and the value of angle of incidence for which angle of refraction become 90 degree. This condition is called as critical angle. इसको हम क्या कहेंगे, critical angle की condition आ गई है। And after the critical angle again on increasing the angle of incidence, इसके बाद फिर हमने और ज़्यादा angle of incidence को increase किया तो the light ray instead of going to other medium it return back to the same medium। ठीक है, द लाइट रे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर मीडियम इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पे क्या होगा, आई शुड बी ग्रेटर देन द आई सी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये आर डैश कह देना। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक्चुअली ये जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है ये सेम प्रोसेस पर, लाइट की सेम प्रोसेस पर बेस्ड है। सो हमने क्या बताया, द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ionosphere. Because when electromagnetic wave will propagate from transmitting antenna to receiving antenna, then density of air near the earth surface become more, and as we move up to the earth surface, so air density get decreases or atmospheric density get decreases and temperature increases। ठीक है, at ionosphere। so क्या होगा एक्चुअली कि whenever the light ray should move from earth surface to the ionosphere, तो अर्थ सरफेस पे एयर डेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज इट मूव फ्रॉम हाई डेंसिटी रीजन टू लो डेंसिटी रीजन, हाई डेंसिटी रीजन टू लो डेंसिटी रीजन, दैट इज डेंसर टू रेयरर मीडियम। कैसे मूव कर रही है लाइट रे, इट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो फॉर ए पर्टिकुलर लेयर ऑफ ionosphere, when angle of incidence of electromagnetic wave is more than the critical angle, then its total internal reflection will takes place and it get returned back to receiving antenna. This mode of wave propagation of electromagnetic waves is called sky wave propagation. क्या बताया, in sky wave propagation the propagation of electromagnetic wave will takes place from transmitting antenna to receiving antenna by the total internal reflection of ionosphere. So in this method electromagnetic waves will move from earth surface to the ionosphere, then it move from high density region to the low density region और denser to rarer medium। क्योंकि अर्थ सरफेस पर एयर डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डेंसर मीडियम हो गया। जैसे जैसे अप टू द अर्थ सरफेस जाएंगे तो एयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेयरर हो जाएगी। दैट्स वाई लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड फॉर ए पर्टिकुलर लेयर of ionosphere when angle of incidence should be more than the critical angle, then total internal reflection of electromagnetic waves will takes place and it return back to the receiving antenna। ठीक है, so this method is called as what, sky wave propagation। in this method the frequency of light frequency of wave is about 30 megahertz। ओके, तो ये आपका थर्ड वेव प्रोपोगेशन हो गया, स्काई वेव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बाद हाइट ऑफ एंटीना क्या होना चाहिए। LOS मेथड में भी स्ट्रेट लाइन सिग्नल जो ट्रेवल करता है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ LOS मेथड, हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।